नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने आज चित्रकूट तालुके के नागनकेरा गांव का किया दौरा। द ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा गांधीगंज में सांसद सागर खंडरे का सम्मान। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी से भाजपा के भीतर भ्रष्टाचार को दूर करने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को सिद्धरामैया के साथ या उनके बिना आगे बढ़ना चाहिए। भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री श्री ईश्वर खंडरे ने आज चित्रकूट तालुके के नागनकेरा गांव का दौरा किया। भारी बारिश और स्थानीय झील के बैक वाटर से हुए नुकसान का निरीक्षण किया और पीड़ितों के लिए गांव में स्थापित दलिया केंद्र का दौरा किया और हस्तशिल्प के बारे में जानकारी ली। झील के बैक वाटर से 20 से अधिक घरों के क्षतिग्रस्त होने से बाढ़ के दौरान इस प्रकार की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए घरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो निजी जमीन खरीदी जाएगी, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी और मकान बनाने के लिए सरकार खुद कदम उठाएगी। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फसल क्षति का सर्वेक्षण करने और त्वरित राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। बीदर शहर के गांधीगंज में द ग्रेन्स एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा आज सांसद सागर खंडरे का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गंज के व्यापारियों ने सांसद सागर खंडरे को शाल उड़ाकर और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। अध्यक्ष बसवराज धन्नूर ने सागर खंडरे का सम्मान करने के बाद बात की। इस मौके पर बीदर जिला कांग्रेस समिति और बीडीए के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने भी बात की। कार्यक्रम में सांसद सागर खंडरे ने संबोधन किया। गंज के व्यापारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन बपुराज का कवरेज। ತ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗ ಇದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಂತ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಈಗೋ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏಕದಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಬಹಳ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಈ ಮುನಿ ಸಂಘದವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಾಲ್ ಸಂಘದವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದವರಾಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಘದವರಾಗಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾದ್ರೆ ಬೀದರ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಏನಾದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಗಾಂಧಿಗಂಜಲಿನ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. 3-4 ಸಲ ನೀವು MLA ಇರೋದನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿರಿ 5 ಕಾಲವರೆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿಯವರು ಬರುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಲಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ, ನಾಳೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಮುದ್ದವ್ರು ಅಂತಿರು, ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ, ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಹೆಂಗ ಅಂತಿರು. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಪ್ರಭು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರು, ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರು, ವಿಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆದರು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 26 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಅಂದರು ಈ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಬೋದು. ಅದೇ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ ನಿಂತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಿನಾಗಿದ್ದೀನಿ. हमारे बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन कर्नाटका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के उपाध्यक्ष बीज शेट्टी ने कहा कि कोई उपायुक्त मंच नहीं है। वह हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग पूर्व स्नातक बीदर जिला और कर्नाटका ईस्ट कॉलेज बीदर द्वारा आयोजित 2024-25 बीदर जिला स्तरीय प्री ग्रेजुएट कॉलेज खेल महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले के बच्चों की हीनता और अनिच्छा के बारे में बात की। विमुथु ने कहा कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उच्च पद प्राप्त करना चाहिए, और चूंकि आज के युवा कल के नागरिक हैं, इसलिए उन्हें मिलावटी भोजन से बचना चाहिए और सात्विक और संतुलित भोजन करना चाहिए, तभी मजबूत बनना संभव है। बीदर जिला प्री ग्रेजुएट कॉलेज एसोसिएशन के प्रधान सचिव डॉक्टर समारोह का उद्घाटन करते हुए मत्था डोले ने कहा कि शैक्षिक प्रगति के लिए शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी आवश्यक है और खेल इसके पूरक है। खेलों में हार और जीत स्वाभाविक है और इसे प्रतिष्ठा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इसे खेल भावना के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 988038833
978. इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE. Contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555. इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर उनके द्वारा किए गए हमलों के लिए निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी में कई भ्रष्ट लोग हैं और उन्हें सबसे पहले इसमें सुधार करना चाहिए। हरियाणा में चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री द्वारा मूडा मुद्दे पर दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा के बारे में कभी क्यों नहीं बोलते और वहां का दौरा क्यों नहीं करते। मुख्यमंत्री मैसूर के शारदा देवी नगर स्थित अपने आवास के निकट पत्रकारों से बात कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि सिद्धरामैया ने 2011 में कहा था कि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों को अनुसार काम करते हैं और वह कभी राजनीति नहीं करते। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, मैं इस पहलू में एच डी कुमारस्वामी के बयान का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उनके कई बयान झूठ से भरे हुए हैं, इसलिए मुझे उन सभी के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मुझे जवाब देना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए एमयूडीए मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाना बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री बने रहने की परवाह किए बिना पार्टी को आगे बढ़ना होगा। लोकायुक्त पुलिस द्वारा सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से कुछ घंटे पहले खड़गे ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि सिद्धरामैया को इस मामले में इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूडा मामले में अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जब गोधरा की घटना हुई तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिया था? लगभग उसी समय अमित शाह के खिलाफ कई मामले लंबित थे। किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे निशाना न बनाए। उनका इरादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है, किसी व्यक्ति को नहीं। सिद्धरामैया आज यहाँ हो सकते हैं या सीएम पद पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन पार्टी चलती रहेगी। कांग्रेस और उसके वोट बेस को खत्म करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची है। उन्होंने कहा, कानून को अपना काम करने दीजिए, जब स्थिति आएगी हम उस समय जांच करेंगे। अब सिद्धरामैया के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं विपक्ष द्वारा हर दिन उठाए जा रहे मूडा मुद्दे से तंग आ चुका हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने के मुकाबले मूडा बहुत छोटा मुद्दा है। उन्होंने कहा, उद्योगपतियों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है, लेकिन भाजपा एक छोटे से मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सिद्धरामैया के खिलाफ न तो चार्जशीट दाखिल की गई है और न ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। जनता दल सेक्युलर के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी शुक्रवार को भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। पूछताछ के बाद लोकायुक्त कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2015 में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुकृत्यों को उजागर किया था और शर्मिंदगी का कारण बने थे। कुमारस्वामी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और इसीलिए उन्हें किसी भी जांच का डर नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि 2015 में दर्ज मामले के लिए जांच एजेंसी ने 2024 में उनका बयान दर्ज किया है। कुमारस्वामी ने कहा, इसके अलावा अगर मैं किसी भी गलत काम का दोषी पाया जाता हूं तो राज्य सरकार कानून के दायरे में कोई भी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने विधायकों, मंत्रियों या मुख्यमंत्री के खिलाफ मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को कैबिनेट का फैसला केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पीएसयू के कर्मचारियों के खिलाफ मामलों की जांच करने के बारे में था। गौड़ा ने कहा कि गुरुवार को कैबिनेट में लिए गए फैसले को लेकर कुछ गलतफहमी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी विधायक, मंत्री या निजी व्यक्ति के खिलाफ मामला उठाने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौड़ा ने कहा, यह प्रावधान पहले से ही था और हमारी सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। यही कारण है कि सीबीआई को राज्य में कोई मामला उठाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति या अदालत के निर्देश लेने पड़ते हैं। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने आरोप लगाया कि सीएम सिद्धरामैया खुद को जितना साफ सुथरा राजनेता बताते हैं वह नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ 65 मामले दर्ज हैं। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने कहा, सिद्धरामैया ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन करके लोकायुक्त को कमजोर कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में सच्चाई सामने न आए। एसीबी का गठन करके उन्होंने 15 मामलों में खुद को क्लीन चिट दिला दी है और 50 मामलों में कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आप ईमानदार हैं तो सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं? आपका रुख दिखाता है कि आप और आपकी सरकार भ्रष्ट है। रवि ने कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद ही राजभवन से मिले पत्र का जवाब देने की सरकार के फैसले को हास्यास्पद बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को राजनीतिक फैसला बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफा मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है, जो कथित मूड़ा भूमि घोटाले में आरोपी हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा, भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के संबंध में फैसला दिया है और मोदी और सीताराम पद पर बने हुए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर विभिन्न राज्यों में गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करने और उसके पीछे राजनीतिक एजेंडा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उनके साथ हैं और उनके नेतृत्व में काम करने पर गर्व महसूस करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बिथी सुरेश ने कहा कि उनके एक शहरी विकास मंत्री बनने के बाद से मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में कोई अनियमितता नहीं हुई है। मैसूर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मद्देनजर शनिवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर का मुद्दा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालत के आदेश का पालन करता है। हम कानूनी तौर पर मामले का सामना करेंगे। वास्तव में मैंने सीएम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं की। मैंने उनके साथ सिर्फ नाश्ता किया और चला गया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सीएम को मेरी वजह से परेशानी हो रही है। यह देखना चाहिए कि किसके कार्यालय में अनियमितताएं हुई हैं, बिरती सुरेश ने कहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने आज चिटगुप्पा तालुके के नागनकेरा गांव का किया दौरा। द ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा गांधीगंज में सांसद सागर खंड्रे का सम्मान। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी से भाजपा के भीतर भ्रष्टाचार को दूर करने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को सिद्धरामैया के साथ या उनके बिना आगे बढ़ना चाहिए। भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।